کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، کچھ کھجوریں ٹوٹ کے میرے بیڑے میں گر پڑتی ہیں، میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل وہ کھجوریں اٹھا کے ہمسائے کے گھر میں پھینک، کہیں میرا بچہ کوئی کھجور اٹھا کے کھا نہ لے۔ اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر تو دیکھ، ہم کہتے ہیں بڑا دلیر نکلا بچہ کہ اتنے گنے کھینچ لایا، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور اس کے رزق حلال کا اہتمام اور انتظام کرنا چاہیے تاکہ اس کی بہتری ہو۔ بچے کو بہادر اور جرأت مند بنانے کے لیے والدین کو اقدام کرنے چاہیے اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کے نفسیات کے اندر بزدلی پیدا ہو۔ بعض اوقات بچہ رو رہا ہے، ماں کو ضروری کام ہے اور بچے کو چپ کرانا مقصود ہے، تو ماں جلدی کہہ رہی ہے کہ کتا آ گیا چپ کر جا، بلی آ گئی چپ کر جا، تو بچہ وقت طور پہ تو چپ کر جاتا ہے، لیکن اس کے نفسیات کے اندر کتے اور بلی کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں جس بچے کو بچپن میں بلی اور کتے سے ڈرایا گیا ہے وہ بڑا ہو کے شیر کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اپنے بچوں کو کتوں اور بلیوں سے نہ ڈراؤ، انہوں نے بڑے ہو کے محمد عربی کے شیر بننا۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو اس طرح تربیت کی تو ان کے نفسیات کمزور ہو جائیں گے۔ اس طرح بچوں کے لباس کا خاص خیال رکھیں۔ ہر ماں کی خواہش ہے کہ میرا بچہ بڑا خوبصورت نظر آئے، لیکن کیا ہم شرعی لباس پہنا کر ہی اس کو خوبصورتی میں دیکھ سکتے ہیں یا کہ شرعی لباس کا اہتمام کر کے خوبصورتی میں سے دیکھ سکتے ہیں؟ چھوٹے بچوں کو چاندی کے کنگن اور سونے کی انگوٹھیاں وغیرہ پہنانا درست نہیں ہے۔ تحفے کے طور پہ اگر لوگ دیں تو ان کو رکھ لیں، سنبھال لیں، کسی اور مصرف میں لے آئیں، اور بچوں کو چونکہ منع کیا گیا ہے سونا چاندی پہنانا، بچیوں کو پہنائیں اور بچوں کو پہنانے سے گریز کریں۔ اور ان کا لباس جو ہے اس کے اوپر مختلف جو ہیں وہ تصویریں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں جنبی کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اس لیے اس بچے سے رحمت کا فرشتہ دور ہو جائے گا۔ اس کو سادہ لباس پہنائیں، وہ لباس پہنائیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، جو پردہ بھی اور زینت بھی ہو اور جس سے حسن بھی جھلکتا ہو، اور ظاہر ہے کہ حضور کے طریقے سے بڑھ کر اور حسن کہاں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی اولاد کو دین سکھائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کون کون سی؟ حب نبیکم، ایک اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، یہ وہ تحفہ ہے جو تم اپنی اولاد کو دے سکتے ہو۔ اب اپنی اولاد کے سینے میں حضور کا پیار کیسے ڈالو گے؟ اپنے گھروں میں حضور کے ذکر کی مجلسیں منعقد کرو، محافل میلاد کا انعقاد کرو، کھانا کھانے بیٹھو، کم از کم پیر کے دن کھانا کھانے سے قبل درود کی مجلس سجا دو اور آقا کریم پر درود پڑھو اور اس کے بعد کھانا کھلاؤ۔ بچوں کے دل میں صاحب درود سے پیار پیدا ہو جائے۔ تو یہ والدین کی کوشش اور ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کے دل میں حضور کا پیار رکھیں۔ بحب اہل بیت ہی، اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا پیار بچوں کے سینے میں ڈالا جائے، یہ سکھایا جائے۔ اولاد کا حق ہے والدین کے ذمہ۔ تو وہ کس طرح ہوگا کہ اہل بیت رسول کے مناقب بیان کیے جائیں، ان کے فضائل بیان کیے جائیں۔ کتب صحاح میں اور جتنی بھی احادیث کی کتب موجود ہیں ان میں جہاں باقی چیزیں، مسائل، شریعت کے معاملات، حلال و حرام بیان کیے گئے ہیں، وہاں اہل بیت، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اچھے لوگوں کے فضائل، انبیاء کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور کسی چیز کا تذکرہ محبت سے ہو تو بندے کا اس کی سمت میلان ہو جاتا ہے۔ تیسرا حق، اس کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ چھین لو ان کے ہاتھوں سے ناول، چھین لو ان کے ہاتھوں سے گانوں اور فلموں کی سیڑیاں، ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دے دو، مصطفیٰ کی حدیث دے دو، اسلامی تاریخ دو، حضور کی سیرت کی کتابیں ان کے ہاتھوں میں تھما دو۔ ان کی خلوتوں پہ، ان کی جلوتوں پہ غور کرو، ان کی دوستیوں پہ غور کرو کہ ان کی دوستیاں برے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے، دین بیزار طبقے کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا تو نہیں ہے جو دین سے انہیں دور کر دیں گے، کیونکہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ ہر بندہ کسی سے دوستی لگانے سے قبل دیکھے کہ اس دوست کا دین کیا ہے۔ تو اپنے بچوں کی دوستیوں پہ نظر رکھو اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بٹھاؤ، بالخصوص جو باعمل علماء ہیں، اگر ان کی صحبت مل جائے
तो वो किबरीत अहमर यानी सुर्ख गंधक की तरह है। उनकी सोहबत में तुम्हारी औलाद बैठेगी तो दीन का रंग चढ़ेगा और वो अल्लाह और उसके रसूल के मती और फर्मा बरदार होंगे, तुम्हारे भी फर्मा बरदार होंगे। इसलिए फरमाया अपनी औलाद को कुरान मजीद की तिलावत सिखाओ। ये वो तोहफा है जो तुम अपनी औलाद को दे के जा सकते हो। और अगर तुमने अपनी औलाद को ये नहीं दिया तो क्या दिया? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपनी औलाद को अदब की एक बात सिखाना, एक सा यानी 4.5 सेर गल्ला अल्लाह की राह में खैरात करने से ज्यादा फजीलत वाला है। नवाफिल के अंदर मशगूल होने से बेहतर यह है कि औलाद की अच्छी तरबियत की जाए। औलाद की अच्छी तरबियत करना ये ज्यादा बेहतर है। और कल क़यामत के दिन औलाद के बारे में बंदे से पूछा जाएगा। यहाँ फरमाया गया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी और अपने अहले खाना को भी जहन्नम की आग से बचा लो। कल क़यामत के दिन औलाद के बारे में वालिद को पूछा जाएगा, वालिदा को पूछा जाएगा। और इस हवाले से एक और अहम बात है और वो ये कि वालिद और वालिदा दोनों मिलकर बच्चे की तरबियत को अदा करते हैं, उसकी तरबियत में हिस्सा लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सा बच्चे की तरबियत के अंदर माँ का है। अगर माँ बच्चे की तरबियत ना करना चाहे तो बाप जो मर्जी करे तो कभी भी बच्चे की तरबियत नहीं हो सकती। इसलिए माँ का हक है कि वो अपने बच्चे की तरबियत के अंदर बहुत सारा हिस्सा ले, उसको अपने पास बिठाए, वक्त दे। हम बच्चे को स्कूल भेज दिया, स्कूल से आया तो ट्यूशन भेज दिया, उसके बाद टीवी पे बैठ गए, खराबी होगी। बच्चों को ना बाप ने टाइम दिया ना माँ ने टाइम दिया और बाद में बच्चे बड़े होकर माँ बाप के करीब नहीं होते। माँ बाप बीमारी में तड़प भी रहे हों, बच्चे आके दवाई ले देना ही अपना फर्ज समझते हैं, उनके पास बैठना अपना फर्ज नहीं समझते हैं और वो अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। तो अपनी औलाद को आज वक्त दें, कल तुम्हारी औलाद तुम्हें वक्त देगी। और अपनी औलाद को दीन की तरफ राग़िब करें। जब बच्चों की बगलों में बाल उगने लगे तो उनको कहो कि इनको खींचना है, मूडना नहीं। अमूमन उस वक्त पता चलता है जब बंदा मूड चुका हो, जबकि हदीस के अंदर नितफुल इब्द के लफ्ज हैं कि बाल खींचना जो है वो मसनून है और खींचने से, चंद बाल खींचने से ये बाल वैसे ही जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो उनको तरगीब दें। जब बच्चे की दाढ़ी का खत आने लगे तो उससे तरगीब दें कि ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, इसका कत्ल नहीं करना। वो बदकिस्मत माएँ हैं जो बेटों को कहते हैं कि बेटा अभी तेरी उम्र दाढ़ी की नहीं है। अगर दाढ़ी की उम्र नहीं है तो आई कैसे है? बल्कि बेटे को तरगीब दे, उसको सुन्नत इमाम सजाने, उसकी पेशानी चूम कर जो है कहे कि बेटा तेरा ये हुलिया मुझे भी पसंद है, अल्लाह और उसके रसूल को भी पसंद है। तो फिर हालात का जबर, जमाने की तुंद और तेज हवाएं बच्चे के लिए मसला नहीं बनेगा। इसलिए अपने बच्चे की तरबियत इस अंदाज, माँ अगर बच्चे की तरबियत में अमली तौर पर जो है वो जुहदे मुसलसल करेगी और कोशिश बलीग करेगी और अपने अमल और किरदार को पेश करेगी तो फिर बेटा बेहतरीन इंसान बन के दुनिया के सामने आएगा। आप कायनात के अंदर जितने भी अच्छे लोग देखते हैं उनके पीछे उनकी माओ का हाथ है। अगर करबला के तपते हुए रेगजार में 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने हुसैन इब्ने अली डटा हुआ है तो ये फातिमा बिनते मोहम्मद के दूध की तासीर है। माई रास्ती माँ हो तो बेटा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है, माई उम्मुल खैर हो तो बेटा गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी होता है। माँ बेटे को दिरहम सीध रही है उसकी आस्तीन में और साथ ताकीद कर रही है कि बेटा झूठ नहीं बोलना। और फिर दुनिया ने देखा कि कितने डाकुओं को तौबा की तौफीक नसीब हुई। ये माँ की तरबियत का असर है। आज की माएँ अपने बेटों को क्या क्या दर्स दे रही हैं और किन राहों का मुसाफिर बना रही हैं। एक वो माएँ थी जो अपने बेटे को दूल्हे की तरह सजाकर रिज़म गाहे जिहाद में भेजा करती थी। हजरत उम्मे अम्मारा की उस कहानी को कौन भूल सकता है जब उनके बेटे हजरत हबीब बिन ज़ैद मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में आए और मुसैलमा कज़्ज़ाब के सिपाहियों ने पकड़ के मुसैलमा कज़्ज़ाब के सामने हजरत हबीब बिन ज़ैद को रखा। बड़े खूबसूरत थे। मुसैलमा ने कहा एक बार कह दो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँ। हजरत हबीब बिन ज़ैद कहने लगे जिस जुबान से मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा है उस जबान से मुसैलमा कज़्ज़ाब को रसूल कैसे कह सकता? उसने हजरत हबीब बिन ज़ैद का एक हाथ काट दिया। फिर कहा एक बार कह दो मैं तुझे अब भी कहता। कहा मैंने पहले नहीं कहा मोमिन की तो एक जबान होती है। जब मैंने कहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह तो फिर कैसे मैं अब मुसैलमा कज़्ज़ाब को रसूल कह सकता? उसने दूसरा हाथ काटा। फिर कहा अब भी कह दो। कहा मैंने एक बार नहीं कहा। उसने पाँव काट दिया, फिर दूसरा पाँव काट दिया, फिर आंखों में नेज़े चुभे।
नाक काटती, कान काटती, जिस तरह बकरी की खाल उधेड़ते हैं इस तरह खाल उधेड़ी। जब हजरत हबीब बिन जैद शहीद हो गए, ये बड़ी दर्दनाक कहानी थी उनकी शहादत की। किसी ने उनकी माँ उम्मे अम्मारा को आके बताया, कहा तेरे बेटे को इस दर्दनाक अंदाज में शहीद किया। पहले हाथ काटे गए, फिर काटे गए, फिर नेज़े चबोए गए आंखों में, कान काटे, नाक काटा, बकरी की तरह खाल उधेड़ी, धूप में तड़पने के लिए छोड़ा। तो इस तरह तेरे बेटे को शहीद किया गया। हजरत उम्मे अमारा के चेहरे पे तमानियत का नूर झलकने लगा और कहने लगे लिहाजल यौमे अर्दातुहु, मैंने इसी दिन के लिए तो अपने बेटे को दूध पिलाया था। आज मुझे पता चल गया कि मेरा बेटा जो है वो बामुराद और कामयाब हुआ है, मुझे अपने दूध की तासीर का इल्म हो गया। ये थी वो माएँ। मैं रात इमाम शाफी का तज़किरा पढ़ रहा था। हजरत इमाम शाफी की माँ ने जब इल्म हदीस सीखने के लिए मक्के से अपने बेटे को रवाना किया, 2 यमनी चादरें थी, बेटे को कहा बेटा ले जाओ और जाके इसको बेच लेना और गुज़र औकात कर लेना। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए हैं किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। वो 2 चादरें दे दी। इमाम शाफी कहते हैं मैं यहाँ मदीना शरीफ आ गया, इल्म हदीस हासिल करता रहा, इल्म का नूर मेरे सीने में उतरता रहा। इमाम मालिक की सोहबतों में वक्त गुजरा। जब कई साल बीत गए और उलूम दीनिया की तकमील हुई और शौक हुआ कि मैं मक्कातुल मुकर्रमा जाऊं और अपनी बूढ़ी माँ को जाके मिलूं जो मेरी राहें तक रही है, जिसकी आंखें मेरी राहों में बिछी हुई हैं। कहते जब मैं निकला तो लोगों ने मुझे बड़े हदाया दिए, यहाँ तक कि कई ऊंट कपड़ों से भर गए, कई ऊंटों पर गल्ला लद गया, कई ऊंटों पे अशरफियां थी और मैं पूरी शान के साथ मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ रवाना। जब मैं मक्का के करीब आया, जूं मेरी सवारी मक्कातुल मुकर्रमा के करीब आती चली जा रही है, दिल की धड़कन तेज होती चली जा रही है। बूढ़ी माँ मेरा कैसे इंतजार कर रही होगी और जिंदगी के कितने साल मेरी माँ ने मेरी जुदाई में काटे, मैं माँ से मिलूंगा, क्या आलम होगा। इमाम शाफी कहते हैं जब मैं भी शहर मक्का से बाहर ही था, देखा कि मेरी माँ, मेरी खाला और 10-12 औरतें मक्के से बाहर मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं। जब मैंने माँ को देखा फौरन मैंने छलांग लगाई, ऊंट से और नीचे उतरा, माँ की कदम बोसी की। माँ ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया, सर से लेकर पांव तक मुझे चूमा, मेरे बदन के ऊपर हाथ फेरा और फिर उसके बाद मेरी खाला ने मुझे प्यार किया। मेरी माँ एक समत एक रेत के टीले पे बैठ गई, मुझे अपनी माँ के चेहरे पे अफसुर्दगी नजर आई। मैंने कहा अम्मी क्या बात है कि तुम्हारे चेहरे पे अफसुर्दगी है। मेरी माँ कहने लगी बेटा शाफी, मैंने जब तुझे घर से रुखसत किया था तो 2 यमनी चादरें कुल असासा थी मेरा, मैंने वो तुझे दिया था। मेरा ख्याल था तो अल्लाह के रसूल की हदीस का नूर लेके सीने में वापस पलटेगा। मैं ये क्या ऊंट देख रही हूँ जिसके ऊपर गल्ला लदा हुआ है, जिसके ऊपर पास लदे हुए हैं, जिसके ऊपर जो है वो अशरफियां लदी हुई हैं। मैंने तुझे दुनियादार बनाने के लिए तो नहीं भेजा था, मैंने तुझे मोहम्मद अरबी का गुलाम बनाने के लिए भेजा था। इमाम शाफी कहते हैं जब मैंने अपनी माँ की ये तड़प देखी, मैंने कहा अम्मी बताओ मैं क्या करूं। कहा जो भूखे हैं उन्हें गल्ला दे दो, जो नंगे हैं उन्हें कपड़े दे दो, जो प्यादा हैं उन्हें सवारियां दे दो। कहते मैंने वहीं खड़े खड़े सब कुछ लुटा दिया। उसके बाद मैं माँ के साथ चल दिया। रास्ते में मेरा कोड़ा गिरा, एक लौंडी ने उठा के मुझे दिया। मेरी जेब में सिर्फ 15 दिरहम रह गए थे, मैंने 5 दिरहम उसको दिए। मेरी माँ ने कहा शाफी अब भी तेरे पास पैसे मौजूद हैं? मैंने कहा अम्मी 15 दिरहम। मैं कहा दे दो। मैंने वो 15 दिरहम उसको दे दिए। इमाम शाफी फरमाते हैं कि जब मैं जाके उस झोंपड़े में पहुंचा जिस झोंपड़े से मैं 2 यमनी चादरें लेकर रुखसत हुआ था, तो मेरी माँ ने उन रेत के जरों पे पेशानी रख दी। हाय अल्लाह, मैंने अपने बेटे शाफी को तेरे दीन के लिए वक्फ किया था। मेरे पास 2 चादरें मेरी जिंदगी का कुल सरमाया और असासा था। बेवा औरत के पास यही कुल कायनात थी, मैंने तेरी राह में लुटा दी। अल्लाह, अब शाफी पलटा है तो उसके पास कोई चीज मौजूद नहीं है, हाँ तेरे महबूब की हदीस का नूर इसके सीने के अंदर भरा हुआ है। अल्लाह शाफी को कबूल कर ले और इसको दीन की खिदमत की तौफीक अता कर दे। इमाम शाफी कहते हैं मैं जो कुछ भी हूँ माँ की दुआओं का रूप हूँ, मेरी जिंदगी प्यार का इनाम ही तो है। तो साहिबो, वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी के शब रोज इन राहों पे गुजारे और अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की, वही लोग कामयाब और बामुराद हैं। आओ अपनी औलाद से हमदर्दी ये है कि उन्हें जहन्नम के शोलों से बचाया जाए। औलाद के लिए माँ बाप क्या नहीं करते, सब कुछ बेच डाल देते हैं कि इसका मुस्तकबिल ठीक हो जाए, ये डॉक्टर बन जाए, ये इंजीनियर बन जाए,
अपने सारे असासे बेच देते हैं ताकि इसका मुस्तकबिल ठीक हो जाए। किस मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं? जो 10, 15, 20 साल का है। 45 साल तो एवरेज जिंदगी माहिरीन ने निकाली, 50 साल लगा, 30 साल तक पढ़ते पढ़ते गुजर गई, बाकी 20 साल बचे, उसको मुस्तकबिल कह रहे हो और उसके लिए सब कुछ बेच दिया, सब कुछ लुटा दिया उस मुस्तकबिल के लिए। तो जो मुस्तकबिल ना खत्म होने वाला है, जिस मुस्तकबिल कि कोई नुक्ताए अंजाम ही जिसका नहीं है, तो उसके लिए भी अपनी औलाद को क्या तुमने कुछ दिया? उसको नेकी की राहों पे डाला? क्या वो औलाद अगर हराम कमाती है तो जहन्नम की आग में नहीं जलेगी? अगर नमाज छोड़ती है तो अल्लाह के कहर और गज़ब की वो औलाद मुस्तहिक नहीं होगी? तो अपनी औलाद के असली मुस्तकबिल के लिए तगोताज करो और अपनी औलाद को दीन की राहों पे डालो। उनकी उंगली पकड़ के उन्हें मस्जिद का घर दिखाओ, अपने घरों में मुसल्ले बिछाओ, सहरी के वक्त उठ के नवाफिल पढ़ो, ताकि तुम्हारी औलाद को तुम्हें देख देख के दीन की राहें मिले और वो दीन की समत आ जाए, उनकी जिंदगी के अंदर कुरान का नूर आ जाए, उनकी जिंदगी के अंदर इस्लाम की बहारें आ जाएं। वो माएँ जो अपनी औलादों की तरबियत दीन के मुताबिक करती थी, आज उन माओं के नाम ही रोशन हैं, माओं के नाम ही जिंदा हैं। और जिन्होंने अपनी औलादों को खूबसूरती में देखना तो चाहा लेकिन उनको दीन न दिया, तो मरने के बाद वो बेटे तो उनके लिए हाथ दुआ का भी नहीं उठा सकते हैं। आइए मैं और आप अपनी औलादों को दीन का मुसाफिर बनाएं, यही कामयाबी है, यही बामुरादी है।